Okay, so very good morning once again, bete. Today we are going to start up with the part B of our syllabus as per CBSE circular, the syllabus which is being given by them. In term 1, we have one chapter from part B. The name of the chapter is Marketing Management. Term 1 syllabus from part 1 we have already covered. Now we have shifted on to Marketing Management, that is in part B. Now, first of all, you are supposed to tell me when it comes the word marketing, what do you think about this? Marketing, आपको क्या लगता है क्या होता होगा? Any one of you can share. Yes, unmute yourself and please switch on your camera at least. 4 students are there in the class. Still अगर आप कैमरा ऑन नहीं करोगे तो मजा नहीं आता फिर बात करने का. हाँ जी, काव्य बताइए. मैम मार्केटिंग होता है जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर सेल करते हैं. सेल करने के बाद भी जब आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इस सब प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी. Okay, Prabjot, you want to say something? What is your? Ma'am, it is a kind of activity in which we exchange the goods and services and the needs of the customers are clearly satisfied. Okay, so we have to make sure that our customer are satisfied or not. Okay, Ashwinder, what do you want to say? Ma'am, I think it means that it is to market the product. The product we have manufactured is market means it is brought to the market and it is sold. Okay, तो चलिए आप जो बोल रहे हो ठीक है, वो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. सी मार्केटिंग जो है ये किस वर्ड से बना है? मार्केट वर्ड से बना है मार्केटिंग. तो हम सिंपली पहले अगर इसका सिंपल मीनिंग समझे तो व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग मींस हाउ टू बिहेव इन द मार्केट, हाउ टू रूल द मार्केट. नाउ व्हाट इज अ मार्केट? सबसे पहले आपको ये पता हो कि मार्केट होती क्या है. मार्केट बेसिकली इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कैन मीट. नाउ दिस कैन बी लाइक फिजिकल मीटिंग और इट कैन बी वर्चुअल मीटिंग. लाइक आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल मिंत्रा है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, दे हैव देयर मार्केट outside the country also, inside the country also, in all the states, all the districts, everywhere. So in case we are talking about physical business, no such physical business can be there which can rule or which can provide goods and services throughout the nation, in all the cities, all the villages, all the districts and all the states. It is only possible with the help of virtual business that we can reach out to the general public. So what is market? Market means wherever you can sell your product. Like अगर हम Amazon की बात करें तो Amazon का product throughout the country कहीं भी बैठ के कोई भी purchase कर सकते हैं. They can even they have their branches and like outside the country also. In different countries this company is doing great. So this is how we can understand the word market. सबसे पहले market means वो market नहीं जहां हम बाजार जाते सामान लेते. That was traditional version of market. कि market सब्जी market अलग है, fish market अलग है. No, now the word market means wherever, like whatever means you can use, buyer and seller can meet. Meet means they should have a negotiation. One should like be placing the order, other should be providing you with the goods or services. That is market. तो market को सबसे पहले तो क्या काम है हमारा बिजनेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस टॉपिक को छोड़ के बताएं. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अवर फॉरमोस्ट, लाइक हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट क्रिएट करनी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू सेल समथिंग, यू वॉन्ट टू मेक सम गुड. कोई भी गुड लगा लो, आप बनाना चाहते हो एक ऐसा फेस मास्क जिसको यूज करके आपका जो फेस है उसका एकदम कलर ही चेंज हो जाता है. मतलब एग्जांपल ले ली मैंने कोई भी, उसका कलर जो है मतलब इफ यू वांट टू लुक लाइक ब्रिटिशर्स यू कैन लुक लाइक दैट.
वो एक मास्क के ऊपर से लगाना है, बट इट लुक्स लाइक आपका कलर ही ऐसा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द प्रोडक्ट यू वांट टू लॉन्च, एग्जाम्पल है, और इट कैन बी यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स और लाइक फेयर पीपल आल्सो इफ दे वांट टू wear a mask of dusky skin and so. तो ये आपका प्रोडक्ट है. So first of all, what is the requirement? The requirement is to create market. इतना अजीब सुनने वाला प्रोडक्ट जो सुनने में अजीब लग रहा है, खरीदेगा कौन? No one is going to buy. So what we need to do, we need to create a market. How we will create a market? We have to like propagate our product. We have to advertise our product. We have to tell other people. We have to provide information about the product. Then only someone will be ready to buy this. When we will give them the benefit, like we have to tell them the benefits of the product that we want to launch. ठीक है जी? तो मार्केटिंग में सबसे पहला जो पॉइंट मुझे समझ आया मार्केट के लिए, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं, what I need to do, I need to create a market. How I will create a market? By finding it out कि whatever product I am manufacturing or I am selling, who is going to buy this? Who is going to buy that product? Am I going to make a product which is only required by young generation? Am I making a product which is only required by children? For example, if I am making some choco chips of cartoon characters, so who are my potential customers? They are children, like younger children is my target customer, मैं बोल सकती हूँ. Okay, then what type of area, what type of community I think will like my product, or is it a product which will be like good and suitable for all areas? Like अगर इंडिया की बात करें तो सारी स्टेट्स में, सारी एरियाज में वो प्रोडक्ट इक्वली लाइक किया जाएगा, या कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में वो चीज ज्यादा पसंद आती है. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा ठंड होती है विंटर्स में, तो कुछ प्रोडक्ट विच इज रिलेटेड टू विंटर्स, दैट प्रोडक्ट विल गेट लाइक मोर पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया एज कंपेयर टू साउथ इंडिया. ठीक है, साउथ इंडिया में हमारा वेदर जो थ्रू आउट द ईयर एक ही जैसा रहता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केटिंग बिगिंस फ्रॉम वेयर दिस मार्केटिंग बिगिंस at the point where we have to create market. To create market, I need to make sure what product I am making, who is going to buy my product, who will be my target customer. That is the initial, like हम के basics of marketing. ठीक है जी? तो marketing कहाँ से शुरू होगी? Where I will see कि what do people want, लोगों को क्या चाहिए. What do people want? What are the needs and wants of the people? How much they are ready to pay to get that particular thing. How many people need this? What type of people need this? This will help me to create my market. Then अभी मुझे पता चल गया कि this is the need. For example, आजकल ये हमारा मॉनसून सीजन है तो हेयर फॉलिंग की बड़ी प्रॉब्लम है. I think all of you may be facing the same problem. तो हेयर फॉलिंग के लिए everyone wants a genuine solution. हर बंदा कहता है देखो, we are paying money to other businesses also, so if you will give us some product which will solve this problem, we will definitely be ready to pay 40, 50, 60, 70, 80, 100 rupees तक का प्रोडक्ट ले आओ, हम ले लेंगे, बट हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए. तो सबसे पहले आपने मार्केटिंग, देखो आज से ये बात सोच लेनी है एज अ बिजनेसमैन, when you are going to make a product, when you are going to think of what business I should run, you should see what is the need of the hour. What is the thing which people want? And do I have a solution to that? What type of product I will be making? Even though if you are like already manufacturing something, still you have to like continually watch what is the like लोगों के preferences और taste change होते रहते हैं. So you have to modify your product. You have to develop your product as per the changing needs of the customer. In case you are not coping up with the changing environment, you will be kicked out of the competition. Market से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा अगर आप नहीं देखेंगे. That is the reason you may have seen R&D department is there and all the companies, चाहे वो अगर hair fall shampoo की बात करें, Dove है, Lux है, Sunsilk है, Clinic All Clear, Clinic Plus, Tresemme, all the companies, what they used to do, they used to launch new variety of their product. They used to launch a new variant. They used to launch new packaging, new product. Why? Because they want to tell their customer that we are improving product just for you.
Got it? So that is how marketing works. So basically marketing का मतलब समझ आ गया? From where it begins at the thought of creating a market for your product, then convincing the people that okay, we are doing good for you, we are providing you this, we are giving you extra benefits, even after sales services we are giving you, and then to take feedback from the customer that they are satisfied or not. Till that point your marketing will continue. जैसे कि काव्या ने बोला, starting from production of the goods और end हो जाएगा customer को sale करके satisfy करने तक, all these things are being a part of marketing only. ठीक है, तो marketing is a wider concept. It is based on the notion. आजकल की जो marketing है, earlier तो marketing was selling only, कि आपने goods बना दिए, it is up to you, आप कितने अच्छे seller हो. ठीक है, गुड सेलर आपने देखा होगा, हम कई बार क्या होता है, किसी मॉल में जाते हैं या कहीं, वी डोंट वांट टू बाय समथिंग, बट द सेल्समैन दे कन्विंस अस सो वेल दैट अगर हम 2 चीजें लेने की, हम 4 चीजें एक्स्ट्रा लेके आ जाते हैं, बिकॉज वो हमें इतने बेनिफिट्स बताते हैं, मैम इसके साथ एक के साथ 2 फ्री है, इसमें ये बेनिफिट है, इसमें ये बेनिफिट, ये एक्स्ट्रा आएगी, नया मार्केट में लॉन्च हो, यू विल लव दिस प्रोडक्ट. इस तरह से वो आपको बातों में घुमाएंगे तो आप उसको परचेज करो. विंडो शॉपिंग करने गए होगे तो भी एक्स्ट्रा शॉपिंग करके आ जाओगे. तो दैट इज हाउ दिस मार्केटिंग वर्क्स. अर्लियर इट वाज दिस मच ओनली, हाउ टू कन्विंस द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट. आज की डेट में कन्विंस करने की बात नहीं है कि जो मैंने बनाया तुम्हें कन्विंस करके बेच दूं. नो, आज की डेट में कस्टमर इज द किंग, एंड टू सेटिस्फाई दैट कस्टमर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक अ प्रोडक्ट, वी हैव टू स्टार्ट अवर प्रोडक्शन keeping in mind what consumer wants. जब हम वो चीज बनाएंगे जो कंज्यूमर को चाहिए, it will definitely be sold, automatically be purchased by the buyer. हमें उसको ज्यादा प्रोपोगेट भी नहीं करना पड़ेगा, because we are already taking care of the needs of the customer. Clear है बेटा? ये आपको clear है सबको? This is basically the meaning of marketing. Marketing earlier selling was marketing. बहुत साल पहले की अगर हम बात करें तो हम जिसको सेलिंग बोलते हैं, जिसको हम एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, पहले हम उसको सेलिंग बोलते हैं. बहुत साल पहले क्या होता था, कोई भी कंपनी बनाती थी, सेल्समैन रखती थी, जाओ घर घर जाके बेच के आओ, बेच देते थे. फिर उसके बाद एक टाइम आया एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट में टीवी, न्यूज़पेपर वगैरह में ऐड देके, एंड देन देयर आर सम मोर वर्ड्स रिलेटेड टू दिस, लाइक पब्लिसिटी करना, देन सो एंड सो. सो ऑल दीस थिंग्स आर नाउ merged, and a new concept which is being came into existence, it is called as marketing. So marketing is a very wider and novel concept which includes all these things. ठीक है, इसमें क्या प्रोडक्ट डिजाइनिंग जो हम जिसको कहते हैं, how to design our product, how to sell our product, how to advertise our product. कोई भी हमारी जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं उसको अच्छे से बेचने की, all these things are being a part of marketing. Marketing means to create market, to capture market, and to keep ruling that market. To keep ruling, what you have to do consistently, you have to make efforts to improve your product and to keep your customer satisfied, because customer is the king. ठीक है जी? तो मार्केटिंग को पुराने जमाने में सेलिंग समझा जाता था, and then और कुछ वर्ड्स आए, but now all of them are combined and is called as मार्केटिंग. ठीक है जी? डेफिनेशन इसकी पढ़नी है मार्केटिंग की. तो मार्केटिंग इज अ बिजनेस प्रोसेस बाय व्हिच द प्रोडक्ट्स आर मैच्ड विद द मार्केट. देखा जाता है कि मार्केट में कस्टमर की नीड क्या है, एंड थ्रू व्हिच ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप आर इफेक्टिव. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मींस फ्रॉम द सेलर टू द बायर गुड्स कैसे बेचे जाएंगे, पर्सनली बेचेंगे, ऑनलाइन बेचेंगे, और व्हाटएवर वे यू विल यूज, it will be sold. And after that also we have to take care of the, what we have to take care, we have to take care of the satisfaction level of the consumer, if they are satisfied with the product or if they are not satisfied with the product. ठीक है, क्लियर है बेटे? उसके बाद अब हमारे पास है what are features of marketing. Features of marketing is basically related to meaning of marketing ki what is marketing, from where all these, like what all aspects will be considered here. तो इसको अभी मैं skip कर देती हूँ. ठीक है, we are directly shifting on to the point
where we will study functions of marketing. 2 pages आगे करिए, functions of marketing is given. First we will understand functions, क्योंकि I believe the whole chapter is all in all covered in functions. तो functions of marketing एक बार clear हो जाएंगे, आपको features and all that stuff अपने आप आ जाएगा, ठीक है? Now what are various functions of marketing? Functions means what all is to be done while doing marketing. क्या क्या करना पड़ता है marketing में? First हमारे पास step जो है in the process of marketing basically, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? What we have to do? We have to, number 1, gathering and analyzing. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, we have to gather and analyze. क्या gather करना है, क्या analyze करना है? Information about the market. क्या लोगों की needs क्या है? What do people want? What is the need? So gathering and analyzing market information. ठीक है जी, gathering and analyzing market information, जिसको हम मार्केट रिसर्च भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटे हम इसको? वी कॉल इट मार्केट रिसर्च. मार्केट रिसर्च का क्या मतलब है? इन दिस फंक्शन द मार्केटियर, हु इज मार्केटियर, ये वर्ड है आपको. मार्केटियर बेसिकली बेटे इज अ पर्सन who is doing this marketing, who is trying to sell his product. उसको मार्केटियर बोलते हैं. So marketeer, what he will do first of all, anyone who wants to run a business has to become marketeer. And to become a marketeer, first of all, he will gather and analyze the market information. This is also called as market research. इस research में वो देखेगा आज की डेट में कस्टमर को क्या प्रोडक्ट चाहिए. What are the factors जिससे कस्टमर खुश नहीं है? What are the things which will make customer happy? So all these things he will be writing down somewhere, and then on those grounds he will decide what type of business he is going to start, what type of product he is going to launch. ठीक है, इस टाइम पे वो टोटल SWOT एनालिसिस भी करेगा. क्या करेगा? SWOT analysis he is going to do. SWOT analysis, you know, strength, weakness, opportunity and threat. वो भी वो देखेगा कि this is the need of the market. इसमें कोई कंपटीशन है ऑलरेडी? यस, दिस इज ऑलरेडी कंपटीशन देयर. व्हाट आर माय स्ट्रेंथ, मैं इसको कैसे कवर अप करूंगा? व्हाट आर माय वीकनेसेस, मेरे पास क्या चीज नहीं है? एंड सो. ठीक है, सो ऑल दीज आर टू बी कंसीडर्ड और स्टडीड इन gathering and analyzing market information, that is market research. After that, now what to do? अब information gather कर ली, पता चल गया कस्टमर नीड दिस प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल हेयर फॉल के लिए एक अच्छा शैम्पू चाहिए कस्टमर. तो ड्यूरिंग दिस रिसर्च वी विल सी हाउ मेनी ऑलरेडी शैम्पू कंपनीज आर देयर इन द मार्केट, व्हाट आर देयर स्ट्रेटजीज, व्हाट आर देयर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, how they can capture the market, how they can like lead to our failure. ऐसा भी हो सकता है ना कई बार हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसके पास ऑलरेडी बहुत मतलब कस्टमर बेस है, ऑलरेडी उसके ज्यादा कस्टमर्स हैं, उसका प्रोडक्ट का प्राइस भी जेन्युइन है, एंड ही हैज द बेस्ट साइंटिस्ट जिनसे वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाते हैं, और उनका प्रोडक्ट जो है वो माना हुआ प्रोडक्ट है मार्केट में. उसको बीट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट आज की डेट में. फॉर एग्जांपल अगर हम हेयर कलर की बात करें, हेयर स्मूथ ये जो करवाते हैं लोग करवाते हैं ना, कोई रिबॉन्डिंग करवाता है, कोई स्मूथनिंग करवाता है. तो व्हाट आर द टू लीडिंग कंपनीज, टू लीडिंग ब्रांड नेम्स, वन इज लॉरियल एंड अदर इज मैट्रिक्स. अगर हम कलर में, हेयर कलर कैटेगरी में लॉरियल को बीट करना है तो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें इतने के क्वालिटीज हो, इतने के बेनिफिट्स हो और कॉस्ट की तरफ से भी वो कंफर्टेबल हो, सो दैट कस्टमर का बहुत इयर्स का ट्रस्ट है लॉरियल पे, उसको हटा के अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना इट्स नॉट एन इजी टास्क. सो ऑल दीज थिंग्स आर टू बी कंसिडर्ड इन गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन. अपनी स्ट्रेंथ आपकी क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपका कॉम्पिटिटर आपकी वीकनेस है, या आपके पास ये चीज नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, या आपका कस्टमर बेस नहीं है, व्हाटएवर यू फील लाइक दिस इज माय वीकनेस, दैट इज वीकनेस, एंड देन
अपॉर्चुनिटी क्या है कि कस्टमर की जरूरत, तो कस्टमर तो कह रहा है कि मुझे चाहिए नया प्रोडक्ट. एंड थ्रेट्स आर देयर, कॉम्पिटिटर्स कैन बी योर थ्रेट. After this, what you will do? You will do market planning. What is to be done? Market planning is to be done. Planning means we will plan. We will plan about how, मतलब जो भी मैंने फर्स्ट स्टेप में देखा कि what I have to make, how this plan is to be executed further. मतलब मान लो यहाँ पे मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे हेयर कलर की कंपनी या हेयर कलर लॉन्च करना है. यहाँ पे आप डिसाइड. नाउ मार्केट प्लानिंग में मैंने देखना है व्हाट टाइप ऑफ कलर आई विल यूज. फैशन कलर होते हैं, बेसिक कलर आई विल प्रोवाइड. शैम्पू में कलर देंगे और सेपरेट कलर्स होंगे. विच ऑल एरियाज आई विल डू लाइक कवर. व्हाट टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट आई विल यूज. सो ऑल दीज आर टू बी प्लान्ड इन मार्केट प्लानिंग. इतने के रेट का हमने प्रोडक्ट लॉन्च करना है. टीम मेरे पास है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके पूरा प्रोडक्ट बना देगी. पैकेजिंग के लिए वो सारा मैंने अलग एक टीम बनाई. सो प्लानिंग में हम वो सारा कुछ करते हैं. हाउ आई कैन इंक्रीज माई सेल, हाउ आई कैन इंक्रीज माई कस्टमर बेस, वो सारा प्लान कर लिया. ठीक है. उसके बाद अब प्लान कर लिया हमने, तो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी करना है. एग्जीक्यूशन में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट डिजाइनिंग. प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड उसकी डेवलपमेंट. Now this is for both type of companies. In case we are talking about a new company, तो वो न्यू कंपनी के साथ रिलेटेड हम प्रोडक्ट डिजाइनिंग करेंगे, नया प्रोडक्ट. इन केस वी आर ऑलरेडी रनिंग अ कंपनी और हमने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स में वेरिएंट्स बढ़ाने हैं. हमारे पास पहले 4 टाइप के प्रोडक्ट थे, अब हमने 2 टाइप और ऐड कर दी. तो पहले हमने इंफॉर्मेशन गैदर की, प्लान किया और प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया. प्रोडक्ट डिजाइनिंग में आ जाता है बेटे कि हमने किस तरह की पैकेजिंग करनी है, हमने किस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करना है. हमारा प्रोडक्ट बॉटल फॉर्म में आएगा, ट्यूब फॉर्म में आएगा, पाउच फॉर्म में आएगा. व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट की डिजाइनिंग हमने यहाँ पे कर ली. ठीक है बेटे, समझ गए. जैसे आपको कोई कोल्ड ड्रिंक्स या मिल्क शेक ऐसी कोई एग्जांपल ले ले, तो विल इट बी प्रोवाइडेड इन प्लास्टिक बॉटल लाइक पार्टी पैक जैसे होता है, और इन मेटालिक कैन, और इट कैन बी इन टेट्रा पैक और इन सम पाउचेस. So this is all what is being decided in product की डिजाइनिंग करनी है. What type of product, एक तो हमने ये कर लिया कि क्रीम होगा या जेल होगी. मान लो हेयर प्रोडक्ट है तो शैम्पू फॉर्म में होगा, क्रीम फॉर्म में होगा, स्प्रे फॉर्म में होगा. What type of color you are doing, वो भी प्रोडक्ट डिजाइनिंग का पार्ट. और अगर मान लो आपका ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट बना हुआ है तो आपने उसकी डेवलपमेंट करनी है. डेवलपमेंट कैसे? बाय चेंजिंग इंग्रेडिएंट्स, बाय चेंजिंग. जैसे आप एग्जांपल देखो, ये पता है ना आपको, टूथपेस्ट आपको मालूम है, कोलगेट का नाम सुना है सबने. तो हमें न्यूज में, ये एड में हम सुनते रहते हैं, बोलते हैं क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है. अभी उसके बाद आ गया आपके टूथपेस्ट हर्बल है कि नहीं. कोलगेट हर्बल एक उन्होंने वेरिएंट निकाला. कोलगेट एक्टिव सॉल्ट एक वेरिएंट निकाला. कोलगेट का वो फ्रेशनिंग कूलिंग क्रिस्टल्स वाला एक वेरिएंट निकाला. सो दिस इज व्हाट, दिस इज development of the product, how the product is being developed. ठीक है, जो already designed product है, already market में है, उसको develop करना. From time to time you have to change your product and its strategy. That is all in product design. New है, old है, product को design करना और time to time उसकी development करना, change करना. Then उसके बाद अब for example आपने अपना product design कर लिया, अब उसकी ग्रेडिंग करना और स्टैंडर्डाइजिंग. स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. ठीक है जी. अब स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग का मतलब बेटे क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है क्वालिटी को लेके हमने कुछ स्टैंडर्ड्स में मतलब क्रिएट कर दिए कि इस क्वालिटी या इस स्टैंडर्ड से नीचे का प्रोडक्ट हम नहीं बनाएंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल के लिए अभी मैं यहाँ पे इस पे एग्जांपल चेंज करके बता रही हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट डिजाइन किया था मोबाइल. ठीक है, मोबाइल फोन को मैंने डिजाइन किया था.
स्टैंडर्डाइजेशन में मैं क्या करूंगी, मैंने उसमें ना टाइप्स रख दिए, जैसे फॉर एग्जांपल 10,000, 20,000, 30,000। आपको पता ही होगा बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो तीनों रेट्स में मोबाइल निकालती, तीनों रेट में तो 10,000 का भी फोन होता, 20,000 का भी होता, 30,000 का भी होता। अब किस बेस पे इन फोन्स को डिफरेंशिएट किया गया होता है? On what basis they are being differentiated? On the basis of the features, the quality features are there. For example, the क्या बोलते हैं इसको, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमारा प्रोसेसर है, ठीक है, क्वाड कोर प्रोसेसर, 4 मतलब अलग अलग उसके वेरिएंट्स आते गए। जो हमारा है एंड्रॉइड वर्जन है, जितना एडवांस्ड वर्जन है उतने ज्यादा पैसे लगेंगे। कैमरा क्वालिटी है, जितनी ज्यादा कैमरा क्वालिटी उतने ज्यादा पैसे। तो लाइक दिस व्हेन अ कंपनीज ने लाइक डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट, दे यूज्ड टू सेग्रीगेट इट, दे सेग्रीगेट इट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब क्वालिटी के बेस पे उसकी ग्रेडिंग करती जाती है। ठीक है, ग्रेडिंग का मतलब होता है कि हमने उसको अलग अलग क्वालिटी बेस्ड, जैसे मैं आपको और एग्जांपल दे देती हूँ। चाइनीज प्रोडक्ट, यू ऑल नो इन इंडिया चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो सेल किए जाते हैं। दिस इज अ वेरी कॉमन, लाइक आपने भी सुना होगा, चाइनीज हैव द बेस्ट एवर टेक्नोलॉजी। चाइना में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, ऑल द प्रोडक्ट्स व्हिच दे आर मैन्युफैक्चरिंग इज ऑफ हाई क्वालिटी। हमेशा जो चाइनीज प्रोडक्ट है वो क्या होते हैं, हाई क्वालिटी के होते हैं। इंडिया में वैसी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं बनी जैसी चाइना में है, दे आर मैन्युफैक्चरिंग वेरी गुड गुड्स। तो नाउ द क्वेश्चन इज, अगर चाइना इतना ही एडवांस है तो जो मार्केट में हमें गुड्स मिलते हैं इतने घटिया क्यों होते हैं? वो तो चाइना से आ रही है। तो चाइना हैज द बेस्ट टेक्नोलॉजी, व्हाई दे आर प्रोवाइडिंग सो लाइक not good quality type products? Why is it so? Because let me tell you, Chinese, they used to manufacture goods of different levels, like A grade, B grade, C grade, D grade, like this goods are being manufactured. So high or better technology they will use for A grade and B grade goods. ठीक है, और जो खराब चीजें हैं, जैसे कुछ चीजों के लिए सी ग्रेड एंड डी ग्रेड टेक्नोलॉजी इज आल्सो यूज्ड, जो कि हमें कॉस्टली नहीं पड़ती, सस्ती पड़ती। दैट इज द रीजन व्हाई द गुड्स व्हिच वी आर गेटिंग फॉर सी ग्रेड और डी ग्रेड गुड्स दैट वी आर गेटिंग, they are of the lowest quality standards are being maintained, so we have to pay less. In case we talk about some good quality product which are also coming from China, say Apple iPhone you all know, you may have used. So they are basically manufactured in US, but they are assembling it in China, all the Apple iPhone. तो आपको लगता है कि Apple, if they are selling their mobile phone for 1 lakh rupees, they are paying for poor technology? China में घटिया टेक्नोलॉजी को नहीं पैसे देंगे वो। Definitely they are getting A grade quality work done from Chinese. So the product which we are getting for low cost, they are of C and D grade. Similarly grading is being done pricing के बेस पे, ठीक है, स्टैंडर्ड के बेस पे। जैसे इंडिया गेट बासमती राइस यू ऑल मे हैव हर्ड, यूज भी किए होंगे। तो इंडिया गेट बासमती राइस आल्सो हैविंग डिफरेंट वेरिएंट्स आर देयर। उसमें उनके जो राइस हैं वो 60 रुपीज, 70 रुपीज, 80 रुपीज, 90 रुपीज, 120 रुपीज तक, उससे भी ज्यादा 180 रुपीज, 220, इतने महंगे तक भी उनके राइस जो है वो मिलते हैं। ब्रांड सबका सेम है, इंडिया गेट बासमती राइस, अंदर उसके वेरिएंट है डिफरेंट क्वालिटी, रेट। ये डिफरेंट रेट किस बेस पे आया? ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इनसाइड दैट। ठीक है जी, तो उसकी क्वालिटी के बेस पे इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन करना और ग्रेडिंग करना। ठीक, जैसे वेरका मिल्क का पैकेट में खरीदा होगा, अमूल मिल्क और वेरका मिल्क, हमारे यहाँ पे यही दो होते हैं। उसमें आता है ना ग्रीन पैकेट, रेड पैकेट, ऑरेंज पैकेट, येलो पैकेट, ब्लू पैकेट। सो दोज पैकेट्स आर आल्सो देयर ऑन द बेसिस ऑफ द फैट consistency in the milk. Some milk, like sometime when it is skimmed milk, तो उसका फैट कंसिस्टेंसी, मतलब फैट्स कम है उसमें, लेवल ऑफ फैट इन दैट मिल्क। कोई जो मिल्क है वो
अलग अलग कैटेगरीज हैं, आपको पता होगा मार्केट में आप यूज करते हैं. सो दैट इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन व्हेन द प्रोडक्ट इज बीइंग डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी. ठीक है, तो उसको ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं. क्लियर है? हाई क्वालिटी मोर प्राइस, लेस क्वालिटी पुअर क्वालिटी लेस प्राइस. इसके बाद हमारे पास आ जाता है पैकेजिंग और लेबलिंग. अब ये भी बिजनेसमैन को ही करना है, मार्केटिंग को. पैकेजिंग एंड लेबलिंग. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकेजिंग? पैकेजिंग मींस हाउ टू लाइक पैक योर प्रोडक्ट. ठीक है, in case you are packing your product in a better way, you will definitely get good customer base. आपकी पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी, your product will not be sold. ठीक है, for example किसी भी चीज की एग्जांपल, हम देसी घी की एग्जांपल ले लेते हैं. in case you are providing देसी घी and the package, जो भी आपका पैकिंग है वो है प्लास्टिक के डिब्बे में. ठीक है, प्लास्टिक का बॉक्स है वो, उसको ओपन करो, उसका वो एक सिल्वर फॉयल जैसा निकालो एंड देन यू कैन इजीली यूज इट. और उसका जो मतलब उसका ओपनिंग का सरफेस है दैट इज आल्सो वेरी ब्रॉड, तो यू कैन पुट इन एनी स्पून और समथिंग एंड टेक इट इजीली. सो दैट इज वेरी इजी. फॉर एग्जांपल यू हैव मैन्युफैक्चर्ड देसी घी एंड यू पोर इट इन अ बॉटल. बॉटल में आप देसी घी बेचोगे, कोई खरीदेगा? नो. व्हाई नॉट? बिकॉज देसी घी इज समथिंग जो कि फ्रीज हो जाता है. विंटर्स आएंगे वो फ्रीज हो जाएगा, बॉटल में से तो निकलेगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. सो व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन और द मैन्युफैक्चरर यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू सी व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी आर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोवाइडिंग, और उसका जो बेस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ पैकेजिंग होगा दैट विल बी डन. ठीक है, जैसे क्रीम्स दे आर इन ट्यूब जनरली, और द स्प्रे ठीक है, तो स्प्रे और समथिंग जैसे क्रीम की मैंने आपको एग्जांपल दी. फॉर एग्जांपल फेयर एंड लवली इज देयर. तो फेयर एंड लवली यूजुअली अर्लियर इट वाज इन अ ट्यूब, आजकल आई थिंक वो थोड़ा बॉटल में ऐसे स्प्रे वाला हैंडल के साथ आती है. एंड एट द सेम टाइम फॉर पुअर कस्टमर्स आल्सो, कई लोग ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते, दे हैव डिफरेंट पैकेजेस आल्सो. जो 5 रुपीस में छोटे पैकेजिंग भी आती है, पाउच जैसा होता है, आगे उसके वो उसका कैप है. दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग इज आल्सो देयर बिकॉज you can't miss a customer. You know, everyone is not in the position to buy the big bottles or packaging. So different type of packaging is there, like provided by the company to its customer on the basis of the needs of the customer and demand of the customer. Whatever you demand, you will ask for. Definitely, you will get this type of product from the company if the company is of the view to like think about the customer. जो कंपनी नहीं सोचेगी तो डेफिनेटली किक आउट हो जाएगी, उसको कोई पूछेगा ही नहीं. जो सदियों से एक ही प्रोडक्ट बना रही है उसको डेवलप भी नहीं कर रही, पैकेजिंग भी नहीं चेंज कर रही, फिर कोई लेगा ही नहीं. ठीक है जी. सो दिस इज अबाउट पैकेजिंग एंड लेबलिंग. लेबलिंग बेसिकली क्या होता है? लेबलिंग का मतलब होता है उसके ऊपर लेबल लगाना. लेबल मींस टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द फेस ऑफ द प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग व्हिच इज ईटेबल, तो इफ इट इज वेज और नॉन वेज, यू हैव टू प्रोवाइड इट विद द ग्रीन मार्क और ब्राउन मार्क. कैसे होते हैं? ग्रीन मार्क फॉर वेज एंड ब्राउन मार्क फॉर नॉन वेज. अगर आपके प्रोडक्ट में कोई भी एनिमल प्रोडक्ट यूज हुआ है तो यू विल प्रोवाइड अ ब्राउन मार्क. तो जो लोग उसको नहीं प्रेफर करते दे विल नॉट बाय. सो दिस इज लेबलिंग. लेबलिंग मींस यू हैव टू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन on the face of the product what is inside it, like the ingredients of the product, like the price of the product, expiry date and so on. ठीक है जी. सो आज हम इतना ही करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. रेस्ट पॉइंट्स वी विल कवर टुमारो. प्लीज गो थ्रू इट वंस. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, बट पढ़ना तो पड़ेगा एक बार. ठीक है. इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क.